ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ تھا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سلطان کون تھا۔ ہم آپ کو شیر میسور کی داستان سنائیں گے۔ 1760 میں دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر تھا سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری تھی۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جان فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا تھا اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی اور اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور اس رسی کے ذریعے نیچے اتر آیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں شور مچ گیا کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ دراصل یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا جو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ وہ شہر سے فرار تھا اور اس کے بیٹوں کو قید کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماسک پہن لیا۔ پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد، لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ اس کی وجہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ تھا۔ صوبے جو آج کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھا، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدارس تھا جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق ہی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اور اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں بہت زیادہ تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹیپو صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمن سے جنگ اس کے اعصاب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی، لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں محصور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد۔ اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدارس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، جبکہ برطانیہ میں صفے ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا شامل تھے۔
ये वो लोग थे जिन्होंने टीपू को तख्त संभालने में मदद दी थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि टीपू सुल्तान उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। टीपू अपनी उसूल परस्ती की वजह से अपने साथियों को सजाएं भी देता था, जिसकी एक मिसाल ये है कि जब टीपू के इंतहाई माहिर और वफादार जनरल मोहम्मद अली कमीदान ने टीपू के एक मुखालिफ को पनाह दे दी तो टीपू ने मसलहत से काम नहीं लिया, उसने कमीदान को गिरफ्तार कर लिया। कमीदान ने कैद में ही खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये से सुल्तान के बहुत से वफादार बददिल हुए। चुनाचे दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेजों की दाल गलने का इम्कान पैदा हो गया। अब उन्हें टीपू के दरबार से गद्दार मिलने लगे थे और इस गद्दार फैक्ट्री का खरीदार था ईस्ट इंडिया कंपनी से आया नया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत मक्कार था और दुश्मन को मैदानी जंग में हराने से ज्यादा उसे अपने घर में कमजोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू की रियासत में कई जासूस भेजे, जिनमें एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स टीपू के दारुल हुकूमत सेरिंगापटम पहुंचा, जहां उसने नाराज और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हमायत पर तैयार कर लिया, लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया। गद्दारों और सैयद इमाम को सजाए मौत दी गई, लेकिन इससे गद्दारों की प्रोडक्शन रुकी नहीं बल्कि उनकी तादाद बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तन्हा टीपू के मुकाबले पर आने से डरता था। उसने निजाम हैदराबाद और मरहटों को भी साथ मिला लिया। जंग शुरू करने के लिए उसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेजों के एक इत्तेहादी राजा ट्रांकुवर के खिलाफ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग राजा ने खुद छेड़ी थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला खत्म हो चुका था, लेकिन कॉर्नवालिस ने इस जंग को जवाब बनाकर साबिक शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुलह का माहिदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बंगलोर में ही घेर लिया, लेकिन जब वो फैसला कुन हमला करने वाला था तो टीपू की फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी, जिसकी बदौलत वो बच निकलने में कामयाब हो गया। वो न सिर्फ टीपू के हमले से बच निकला बल्कि उसने एक लंबा चक्कर काटते हुए टीपू सुल्तान के मरकज सेरिंगापटम पर चढ़ाई कर दी, लेकिन सेरिंगापटम से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि उसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मरहटे और निजाम, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों की मदद के लिए फौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी मदद को नहीं पहुंचे थे। यूं कॉर्नवालिस सेरिंगापटम के मुहासरे में नाकाम रहा। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया था कि इन हालात में उसने टीपू की फौज पर हमला किया तो उससे जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे वो लड़ाई छोड़कर अपनी फौज के साथ बंगलोर की तरफ भाग निकला। ये वो मौका था जब टीपू सुल्तान ने एक भागती हुई और शिकस्त खोरदा अंग्रेज फौज का पीछा करके उसे तबाह करने की बजाय उसे निकल जाने का मौका देकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। इस गलती का खमियाजा पहले मैसूर और फिर सारे बरे सगीर को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मरहटों और निजाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज, मरहटे और निजाम खूब तैयारी के साथ दोबारा सेरिंगापटम पर टूट पड़े। उन्होंने सेरिंगापटम का मुहासरा कर लिया और अब टीपू को एहसास हुआ कि वो कॉर्नवालिस को भागने का मौका देकर एक नाकाबिले तलाफी गलती कर चुका है, क्योंकि मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा था। ऐसे में टीपू ने हार मान ली और सुलह की दरख्वास्त की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू से मैसूर की आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए तावान जंग वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी और जंगी गलतियों की बदौलत टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसी कारी जरब लगी कि उसके बाद वो कभी न संभल सका। लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों शिकस्त के बाद टीपू और उसकी सल्तनत पर 2 फौरी असरात मुरतब हुए। एक तो ये कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों से बदला लेने का एक जुनून सवार हो गया। टीपू ने तय कर लिया कि जब तक वो अंग्रेजों को शिकस्त नहीं देगा वो पलंग पर नहीं फर्श पर सोया करेगा, और उसने ऐसा किया भी। उसने एक खिलौना घड़ी भी तैयार कराई जिसमें एक शेर बरतानवी फौजी का गला दबोच रहा था, और ये घड़ी आज भी लंदन के म्यूजियम में महफूज है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदले की तरकीबें सोचता रहता। जंग का दूसरा असर हुआ टीपू के वफादारों पर।
जिन्होंने भांप लिया कि अब टीपू और उसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो सुल्तान से दूर होने लगे, क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान में आज़ाद रियासतों का क़याम होना और टूटना एक आम सी बात थी, क्योंकि जब रियासत कमज़ोर पड़ जाती थी तो उसके वफादार पार्टी बदलकर किसी ताकतवर गिरोह या रियासत में मिल जाते थे। टीपू के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसके एक बेटे में भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो उन खराब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। लेकिन टीपू बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठा था, जो माजी में टीपू का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट के पास अपना सफीर भी भेजा और मदद की दरख्वास्त की। नेपोलियन ने टीपू को एक जवाबी खत भी लिखा, लेकिन ये खत रास्ते में अंग्रेज जासूसों ने पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। जब नेपोलियन 1798 में फौज लेकर मिस्र पर हमला करने निकला तो बरतानिया यही समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान जाने वाला है। फिर नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, तो भी अंग्रेजों का यही ख्याल था कि शायद वो जमीनी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बरतानवी बहरिया ने फ्रांस को शिकस्त दे दी, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान में कंपनी सरकार ने सुख का सांस लिया। टीपू अब चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था और फ्रांस की मदद आने का इम्कान खत्म हो चुका था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस बुलाकर लॉर्ड वेल्सले को गवर्नर जनरल बना दिया। ये शख्स उस वक्त बरतानवी वजीर आजम का फ्रेंड था। दोनों फ्रेंड्स चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया जाए और उनकी नजर में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेजों के जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। उसने अमेरिकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई और अमेरिका आज़ाद हो गया था। चनाचे लॉर्ड वेल्सले टीपू के खिलाफ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। बरतानिया से ताज़ा दम फौजी दस्ते भी उसकी मदद के लिए पहुंचने लगे, लेकिन लॉर्ड वेल्सले को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन गद्दारों को तैयार करके गया था, अब वो वेल्सले के साथ थे। वेल्सले ने टीपू के गद्दारों से ये तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फौज को अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज्यादातर किलों के कमांडर्स ने भी यकीन दिला दिया कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे। लिहाजा फतह का पूरा यकीन करके वेल्सले अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद गया। सुलह का मायदा तोड़ने के लिए उसने ये ऐलान किया था कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कंपनी सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इसलिए जंग जरूरी है। फरवरी 1799 में अंग्रेजी फौज और उसके इत्तेहादी चारों अतराफ से मैसूर पर हमला आवर हो गए थे। टीपू ने हमला आवर अंग्रेजों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडर्स ने दुश्मन पर हमले का हर मौका जाया कर दिया। अपने कमांडर्स का ये अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें ये जवाब देकर चुप करा दिया जाता कि ये सुल्तान की हिकमत अमली है। मगर शेर मैसूर अब भी हार मानने वाला नहीं था। एक मौका पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने अंग्रेज जनरल हैरिस के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड वेल्सले ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जर्नैल होने का एतराफ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में ले आते थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर सरंगापटम में दिफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के सिर्फ 2 माह बाद ही अंग्रेजों ने सरंगापटम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने उसी दीवार को निशाना बनाया और वहाँ एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तय ये पाया कि अगले दिन दोपहर तक अंग्रेज इस शगाफ पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहाँ मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया। फिर 4 मई का सूरज तलू हुआ। नजूमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशगुन है। आप फौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब दोपहर को सुल्तान
सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में न आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर निकले। दूसरी तरफ मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार की शगाफ से हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेजी फौज इस शगाफ के अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फौज को वापस जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक को ही अंदर आने से रोक दिया। इस मौका पर सुल्तान ने अंग्रेजों से आखिरी बार दो हाथ करने का फैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द ही आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगीं और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा, हजूर अंग्रेजों को बता दें आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उसने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त ये नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज सुल्तान की कमर से हीरों की पट्टी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेज सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई जो टीपू सुल्तान के सर में लगी। यूं सुल्तान टीपू शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में ये खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को धोखे से शगाफ से हटाया था। इस खबर के फैलने पर सिपाही मुश्तहल हो गए। उन्होंने गोली मारकर मीर सादिक को हलाक कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजी फौज शहर पर काबिज हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे पर पड़ी थी। टीपू शहीद को अंग्रेजों ने पूरे फौजी एजाज के साथ सेरंगापटम में ही दफन किया। शहादत के वक्त टीपू की उम्र 49 बरस थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू की शहादत के 59 साल बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों ने टीपू के खानदान को कलकत्ता भेज दिया था। टीपू की औलादें उस शहर में 2 बरस तक मेहनत मजदूरी करती रहीं। 2009 में भारतीय हुकूमत को आखिर ये ख्याल आ ही गया कि उनका शाही स्टेटस बहाल करके उन्हें टीपू की जायदाद लौटाई जाए। आज टीपू सुल्तान की मज़ार पर हिंदू और मुसलमान सभी हाजिरी देते हैं। आपको बताते चलें कि सेरंगापटम भारतीय रियासत कर्नाटका में शामिल है और रियासत में टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जाता है और टीपू सुल्तान को आज भी बड़े सगीर का अजीम हीरो माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन